નમસ્કાર, આપ જોઈ રહ્યા છો નેશન પ્લસ ન્યૂઝ. હું છું આપની સાથે હેતલ ભગત. ગુજરાત રિફાઇનરી આઈઓસીએલ ના ઈડી બિપ્લબ બિસ્વાસે પ્રેસ કોન્ફરન્સ યોજી છે. ઇન્ડિયન ઓઇલની ગુજરાત રિફાઇનરી એવીજીએસ 100 LLL ઉત્પાદન કરનારી પ્રથમ ભારતીય રિફાઇનરી બની છે, જે એક ઉડ્ડયન બળતણ છે જે અગાઉ સંપૂર્ણપણે આયાત કરવામાં આવતું હતું. સફળ સ્થાનિક પ્રમાણપત્ર સાથે ઇન્ડિયન ઓઇલે શ્રીલંકાના પાપુઆ ન્યૂ ગિનીમાં એવીજીએસ નિકાસ કરી અને તાજેતરમાં આઈએસઓ કન્ટેનરનો ઉપયોગ કરીને ઇન્ડોનેશિયામાં એક કન્સાઇનમેન્ટ મોકલ્યું છે. આનાથી ભારત એવીજીએસ 100 LLL એવિએશન ઇંધણના ચોખ્ખા આયાતકારથી નિકાસકાર તરફ આગળ વધ્યું છે. ગુજરાત રિફાઇનરીના એક્ઝિક્યુટિવ ડિરેક્ટર અને હેડ બિપ્લબ બિસ્વાસે આ અંગેની વધુ માહિતી આપતા જણાવ્યું હતું કે ભારતીય સશસ્ત્ર દળોને સ્વદેશી રીતે વિકસિત એવીજીએસ 100 LL ના પુરવઠા માટે ગુજરાત રિફાઇનરીએ સેન્ટર ફોર મિલિટરી એરવર્થીનેસ એન્ડ સર્ટિફિકેશનની મંજૂરી મેળવી છે. ગુજરાત રિફાઇનરીએ આઈએસઓ કન્ટેનર દ્વારા જથ્થાબંધ ગ્રાહકોને એવીજીએસ 100 LL મોકલીને તેની ક્ષમતા સાબિત કરી છે. આઈએસઓ કન્ટેનર દ્વારા એવી ગેસોલિન ઉત્પાદનનું પ્રથમ ડિસ્પેચ 17 ફેબ્રુઆરીના રોજ ઇન્ડોનેશિયાની નેશનલ ઓઇલ કંપની પરતામીના માટે નિકાસ પાર્સલ માટે સફળતાપૂર્વક પ્રાપ્ત થયું છે. ગુજરાત રિફાઇનરીના એક્ઝિક્યુટિવ ડિરેક્ટર અને હેડ બિપ્લબ બિસ્વાસ નવીનતા અને નિકાસ અંગે જણાવ્યું છે કે મુખ્ય પેટ્રોકેમિકલ્સ હબ બનવા માટે વ્યૂહાત્મક રોકાણો અને ટેકનોલોજીમાં વધારો કરી રહી છે. 2021માં રિફાઇનરીએ ગુજરાત સરકાર સાથે એક સીમાચિહ્નરૂપ સમજૂતી કરાર MOU પર હસ્તાક્ષર કર્યા છે, જેમાં વિવિધ પ્રોજેક્ટ્સમાં ₹24,000 કરોડના રોકાણ માટે પ્રતિબદ્ધતા દર્શાવવામાં આવી છે. આમાં પેટ્રોકેમિકલ્સ અને લ્યુબ ઇન્ટિગ્રેશન, લુપેજ પ્રોજેક્ટ અને એક્રેલિક્સ ઓક્સો આલ્કોહોલ પ્રોજેક્ટનો સમાવેશ થાય છે, જે કમિશનિંગ પર પેટ્રોકેમિકલ અને વિશેષ ઉત્પાદનોમાં ભારતની આત્મનિર્ભરતાનો વેગ આપશે. પેટ્રોકેમિકલ અને લ્યુબ ઇન્ટિગ્રેશન પ્રોજેક્ટ ₹17,825 કરોડનો લુપેક પ્રોજેક્ટ પોલીપ્રોપોલિન અને લ્યુબ ઓઇલ બેઝ સ્ટોકનું ઉત્પાદન કરવાનો છે, જે રિફાઇનરીની ક્ષમતા 13.7 MMTPA થી વધારીને 18 MMTPA કરશે. આ પ્રોજેક્ટમાં ઇન્ડમેક્સ, ઓટોમેક્સ, પ્રોપિલિન રિકવરી યુનિટ, MS બ્લોક, ISOM અને NSU લ્યુબ ઓઇલ બ્લોક, ન્યૂ VDU અને પોલીપ્રોપોલિન યુનિટ જેવા મહત્વપૂર્ણ એકમોનો સમાવેશ થાય છે. તે 2025ના અંત સુધીમાં કાર્યરત થવાની અપેક્ષા છે. ઓછા સલ્ફરવાળા મરીન ઇંધણ ઇન્ડિયન ઓઇલ પહેલી ભારતીય કંપની હતી જેણે 1 જાન્યુઆરી 2020ની વૈશ્વિક સમયમર્યાદા પહેલા IMO અનુરૂપ મરીન ઇંધણ પૂરું પાડ્યું હતું, જેનાથી ભારતની સ્વચ્છ શિપિંગ પ્રોફાઇલમાં સુધારો થયો હતો. ઇન્ડિયન ઓઇલના નેટ ઝીરો 2046 લક્ષ્ય હેઠળ ગુજરાત રિફાઇનરી કાર્બન કેપ્ચર, ગ્રીન હાઇડ્રોજન ઉત્પાદન, ઉર્જા કાર્યક્ષમતા પ્રોજેક્ટ્સ અને ટ્રીટેડ ગંદા પાણીનો ઉપયોગ જેવી પહેલો હાથ ધરી રહી છે. CSR અંગેની માહિતી આપતા ડેપ્યુટી જનરલ મેનેજર ડોક્ટર ચૈની ફિલિપે જણાવ્યું હતું કે કોર્પોરેટ સોશિયલ રિસ્પોન્સિબિલિટી હેઠળ નાણાકીય વર્ષ 2024-25માં ₹695 લાખ CSR પ્રોજેક્ટ હેઠળ કામગીરી કરવામાં આવી છે, જેમાં 7 જિલ્લાઓમાં ટીબી નિદાન માટે 24 ટ્રુનેટ મશીનો, VMC દ્વારા 3600 ટીબી પોષણ કીટનું વિતરણ, 900 ઉપરાંત ગ્રામજનોને સેવા આપતા 5 આરોગ્ય શિબિરો, VMC અને SSG હોસ્પિટલ માટે અલ્ટ્રાસાઉન્ડ અને લેપ્રોસ્કોપિક મશીનો આપવામાં આવે છે. આ ઉપરાંત સામાજિક અને સેવાકીય પ્રવૃત્તિઓ હાથ ધરવામાં આવી રહી છે. ઇન્ડિયન ઓઇલ ભારતની ટોચની ઉર્જા PSU છે, જે 2024 ફોર્ચ્યુન 500 યાદીમાં 116માં ક્રમે છે. 23 ભારતીય રિફાઇનરીઓમાંથી 11નું સંચાલન કરતી ઇન્ડિયન ઓઇલ દેશમાં સૌથી મોટી રિફાઇનિંગ ક્ષમતા શેર 32% ધરાવે છે. 31,000થી વધુ કર્મચારીઓ અને 61,000થી વધુ ટચ પોઈન્ટ સાથે તેનું લક્ષ્ય 20,246 સુધીમાં નેટ ઝીરો કંપની અને 2047 સુધીમાં $1 ट्रिलियन जायंट बनवाना है. इसमें क्या है, अभी हमारे जितने पाइपलाइंस है उसमें हमारा इंटेलिजेंट डिटेक्शन सिस्टम लगा हुआ है. जहां पे भी पिल्फरेज होता है हमें इमीडिएटली सिग्नल मिलता है. तो ये हमारे एक दूसरे डिवीजन के अंडर आता है. इसके बहुत ज्यादा डिटेल्स मैं आपको नहीं दे पाऊंगा, बट इतना बता सकता हूँ आज की तारीख में हमारे सारे जो पाइपलाइंस है उसमें इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम है. जैसे ही का इंट्रूजन होता है हम लोग इमीडिएटली पिकअप करते हैं
हमारे हर एक कुछ किलोमीटर के बाद बाद रैपिड रिस्पांस टीम्स है। तो जहाँ पे भी इंट्रूजन पिक होता है वो इमीडिएटली रैपिड रिस्पांस टीम जाके वो कंट्रोल करती है। तो इसकी वजह से पिछले कुछ सालों में इंट्रूजन की इंसिडेंसेस बहुत कम हुए हैं, बट एग्जैक्ट नंबर्स आई एम नॉट हैप्पी। अगर आप चाहें तो मैं आपको अलग से प्रोवाइड कर दूं। शटडाउन की बात की, तो शटडाउन की आज से शुरुआत हुई है, तो वो शटडाउन कितने पोर्शन में या कितने परसेंटेज में शटडाउन हो रहा है और ये क्यों करना पड़ा? देखिए, शटडाउन एक पोर्शन आज से शुरू हुआ है, एक पोर्शन पहले से ही शुरू हो चुका है। ठीक है, कुछ पोर्शन शटडाउन के बाद चालू भी हो सकता है। तो ऐसा है कि जो भी हमारी मशीनरी है या प्लांट है, उनको कुछ सालों बाद बाद ओवरऑल और मेंटेनेंस की जरूरत पड़ती है। जो भी हम लोग कैटलिस्ट यूज करते हैं उसका एक लाइफ होता है। उस लाइफ के बाद वो कैटलिस्ट काम करना बंद कर देता है, उनको रिप्लेस करना पड़ता है। तो इन सब कामों को करने के लिए हमें पीरियोडिकली शटडाउन करना पड़ता है। इसके अलावा कुछ गवर्नमेंट रेगुलेशंस हैं जिसके तहत हमें हर इक्विपमेंट के कुछ कुछ टेस्ट करके उनको सबमिट करना पड़ता है, कंप्लाई करना पड़ता है। इन सब चीजों के लिए शटडाउन जरूरी है। तो इन्हीं सब चीजों को पूरा करने के लिए हमने शटडाउन शुरू किया है। इट हैज स्टार्टेड इन फरवरी में एक सेक्शन बंद हुआ था, उसका एक पार्ट चालू हो गया है, एक पार्ट चालू होने वाला है अगले महीने। आज से हमने कुछ और सेक्शंस का शटडाउन लिया है और आने वाले दिनों में हम लोग आगे और शटडाउन लेंगे एंड कुछ कुछ सेक्शन जो पहले शटडाउन हुए थे दे विल बी रिस्टोर्ड और नए सेक्शन शटडाउन होंगे। तो वो बड़ा मतलब काफी डिटेल्ड और लंबा ये है। बट हमारा शटडाउन का जो ये फेज है ये जून जुलाई तक चलेगा। जुलाई के बाद वी विल बी अगेन बी बैक इन फुल ऑपरेशन। कंज्यूमर बेस्ड प्रोडक्ट्स में हो गए हैं, जैसे सब्सिडी आपने बताया कि इंडस्ट्री बेस्ड प्रोडक्ट्स बनाएंगे, क्या अगले 10-15 सालों में एनर्जी लैंडस्केप मतलब बहुत बड़ी तरीके से चेंज होगा। बट आज की तारीख में पूरे दुनिया में इंडिया और चाइना इकलौते देश है जहां पे फ्यूल डिमांड काफी स्ट्रांग रेट से इंक्रीज कर रहा है। तो इस रेट को मैच करने के लिए हम लोग रिफाइनरी एक्सपेंड कर रहे हैं एंड फ्यूचर में जो हमारा टाइम आने वाला है उसके लिए रेडी करने के लिए हम लोग पेट्रोकेमिकल ब्लॉक्स तैयार कर रहे हैं, जैसा कि मैंने बताया। तो इंडियन ऑयल का जो विजन है 2030 तक हमारा, मैं गुजरात की बात नहीं कर रहा हूँ, 2030 तक इंडियन ऑयल का जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है उसमें 15% विल बी पेट्रोकेमिकल्स। आज हमारा हार्डली लेस देन 5% है, तो 2030 तक ये 15% पहुंच जाएगा। इसमें गुजरात रिफाइनरी भी अपना पॉलीप्रोपिलीन, ऑक्सो अल्कोहल, लैब, ये सब भी कंट्रीब्यूट करेंगे। बाकी आपने जो ग्रीन एनर्जी की बात कही है, हम लोग ऑलरेडी बैटरी मैन्युफैक्चरिंग में डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। आप देखेंगे इंडियन ऑयल के कई पेट्रोल पंप्स में चार्जिंग स्टेशन लग रहा है। तो उन सब फील्ड में भी जैसे जैसे ये फील्ड ग्रो करेगा इंडियन ऑयल विल ग्रो विद इट। थैंक यू। हम लोग क्या है, हाइड्रोजन बस का क्या है, वो जब ऑपरेशन में होता है वो धुएं के तौर पर सिर्फ वाटर वेपर छोड़ता है, तो उसका पोल्यूशन इज निल। तो हमने ऑलरेडी हाइड्रोजन डिस्पेंसिंग स्टेशन सेटअप कर लिया है और हमारी बसें आ गई हैं। तो उसमें कुछ स्टैट्यूटरी क्लियरेंसेज हैं, बसों का रन इन पूरा करना है, उसके कुछ सेफ्टी सर्टिफिकेट्स हमें लेने हैं अथॉरिटीज से। जब वो पूरा हो जाएगा तो हम गुजरात गवर्नमेंट के साथ अंडरस्टैंडिंग के साथ हम लोग हाइड्रोजन बसेस चालू करेंगे। तो इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। अभी आईओसी जो है वो कितने प्रोजेक्ट बनाती है और ये जो नया जो प्रोजेक्ट है वो सेकेंड फेज जब उसका पूरा होगा तो कौन से प्रोडक्ट एडिशन में आएंगे और उससे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कितना होगा वडोदरा से आपका? तो अभी आईओसीएल स्पेशली गुजरात रिफाइनरी नॉर्मली सिर्फ फ्यूल ग्रेड प्रोडक्ट्स बनाती है, जैसे कि एलपीजी, एटीएफ, नैफ्था जो पेट्रोकेमिकल का फीड स्टॉक है, डीजल, केरोसिन, ये सब बनाती है। तो इसके अलावा हम लोग थोड़ा बहुत पेट्रोकेमिकल्स बनाते हैं, एलएबी, लीनियर अल्काइल बेंजीन, जो आपके डिटर्जेंट्स का बेस मटेरियल है। तो ये प्रोजेक्ट आने के बाद हमारा पेट्रोकेमिकल्स में पॉलीप्रोपिलीन ऐड होगा नेक्स्ट ईयर तक। ऑक्सो अल्कोहल दैट इज AABA वो इसी साल के सेकेंड या थर्ड क्वार्टर में ऐड हो जाएगा। एंड हम लोग लूब ऑयल बेस स्टॉक बनाना शुरू करेंगे जो वंस अगेन एक इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट है। इसमें डायरेक्टली 300 से 400 लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, बट हमारे ये जो प्रोडक्ट्स हैं इसके बेस पे जो डाउनस्ट्रीम इंडस्ट्रीज बनेंगी उसमें द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज आर मच मोर, में बहुत ज्यादा एम्प्लॉयमेंट का स्कोप है। तो जैसे जैसे डाउनस्ट्रीम इंडस्ट्रीज हमारे प्रोडक्ट को लेके अपना स्मॉल स्केल इंडस्ट्री वगैरह सेटअप करेंगी तो वहां पे एम्प्लॉयमेंट का बहुत स्कोप बनेगा। इसमें क्या नेक्स्ट प्लानिंग है जो अपने राज्य सरकार ने एमओयू किया था उसका क्या डेवलपमेंट है?
तो जैसा कि आप तो सब जानते हैं, हम लोग राज्य सरकार के एमओयू के तहत हम लोग गुजरात रिफाइनरी का जो कैपेसिटी है वो 13.7 से 18 तक लेके जा रहे हैं। वो प्रोजेक्ट अभी एडवांस स्टेज पे है इम्प्लीमेंटेशन के, और उसका एक पोर्शन इसी साल के एंड तक चालू हो जाएगा और बैलेंस पोर्शन नेक्स्ट ईयर के मिडिल तक चालू हो जाएगा। ये होने के बाद हमारी कैपेसिटी बढ़ेगी। इसके साथ साथ हम लोग पॉलीप्रोपिलीन बनाना शुरू करेंगे, जो कि एक पेट्रोकेमिकल है और जो डाउनस्ट्रीम इंडस्ट्रीज के लिए एक सीड है। इस पॉलीप्रोपिलीन से आगे डाउनस्ट्रीम इंडस्ट्रीज का बहुत पोटेंशियल है। इसके अलावा इस एक्सपेंशन के बाद हम लोग लूब ऑयल बेस स्टॉक बना पाएंगे, जो आजकल हाई एंड ग्रेड 3 लूब्स होते हैं, उसके लिए एक अलग बेस स्टॉक चाहिए होता है, जो आज की तारीख में इंडिया में बहुत लिमिटेड मैन्युफैक्चरिंग है। तो इस एक्सपेंशन के बाद वी विल बी इन अ पोजीशन टू पार्शियली सैचुरेट द डिमांड एंड डिसकंटिन्यू द इंपोर्ट्स। लास्टली हमारा ऑक्सो अल्कोहल प्रोजेक्ट पार्शियली चालू हो गया है, उसका एक पार्ट चालू हो गया है, जिसके तहत हम ऑलरेडी एनडीए बेचना शुरू कर चुके हैं। इसका सेकेंड पार्ट जो है अगले 3-4 महीने में चालू हो जाएगा, तो तब हम मार्केट में ए और बीए सेल कर पाएंगे, जो आज की तारीख में 100% इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन होगा। हम जो भी ए बनाएंगे that will reduce the corresponding amount of import that we are currently doing. सर आपने हाइड्रोजन કેમેરામેન નવનીત પ્રમેશ સાથે સત્યમ નવાજકર, નેશન પ્લસ ન્યૂઝ વડોદરા। સમાચારોના સતત અપડેટ મેળવવા માટે અમારી નેશન પ્લસ ન્યૂઝની યુટ્યુબ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરો, બેલ આઇકન દબાવો અને જોડાયેલા રહો ફેસબુક, ઇન્સ્ટાગ્રામ અને ટ્વિટર પર।